Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and were preparing pretty well for this DBT Scientist C examination which is on Sunday. So I hope you already have downloaded your admit card because it is out. So you can check your center and also what are the requirements along with the admit card, right? So you can read all the important information there. What is the timing of the examination, when you have to reach, what is the last time of reporting. So all sort of information you can check it out in your admit card, right? So this video is a kind of rapid fire round, ठीक है, in which I will be providing you so many questions and that too very rapidly. So do watch it because these are all very last minute important questions that will be definitely in your examination. So if you are a new, you can subscribe the channel, and if you like the video, you can genuinely hit the like button. So before starting, I would also request you to do join my Instagram channel because I always post so many important notes and information there, right? So to become very like examination ready, what are the things going on in the field of biology, I always post there. So if you want to get want update, you can join it, right? So now don't panic as we are only having 2 days, ठीक है? So your only duty is to revise and like जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको बस रिवाइज करनी है. तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं. सो क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द मोस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी ए, लाइक पीसीआर, क्रिस्पर, एनजीएस एंड ऑल. जितने भी टॉपिक्स मैंने दिखाए हैं इनमें से ही क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पे आएगा, ठीक है. माइक्रोस्कोपी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. माइक्रोबियल जेनेटिक्स से 1 क्वेश्चन उनके देर. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एग्रोबैक्टीरियम से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे. जीन रेगुलेशन, कैंसर बायोलॉजी से 100% श्योर क्वेश्चन आएंगे. इम्यूनोलॉजी में भी आपके इंटरव्यू की पे क्वेश्चन आ सकते हैं, साइटोकाइंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉपटोसिस. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स श्योर शॉर्ट जिससे क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है. नाउ क्विकली, विच फ्लोरोसेंट डाई बाइंड्स नॉन स्पेसिफिकली टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, इन qPCR, ठीक है. रियल टाइम पीसीआर में नॉन स्पेसिफिकल बाइंडिंग किसकी होती है, जिसमें हम बोलते हैं एफिशिएंसी कम होती है, दैट इज ऑफ साइबर ग्रीड, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, इन qPCR अ लोअर CT वैल्यू इंडिकेट्स व्हाट? लोअर टेम्परेट कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेट कंसंट्रेशन, पीसीआर इनहिबिशन, नो एम्प्लीफिकेशन. सो इन qPCR अ लोअर CT वैल्यू मीन्स टेम्परेट का कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेट कंसंट्रेशन, ठीक है. सो दिस वन. Now digital PCR differ from qPCR because कि दोनों में क्यों डिफर करता है? Because in digital PCR we can do partition in our sample. ये मैंने अपने types of PCR वाले वीडियो में बताया था. What is digital PCR, what is dPCR. So you do partition sample into 1000 of reaction. छोटे 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 आप में डिवाइड कर देते हैं न्यूमरस, तो आपका शॉर्ट एम्प्लीफिकेशन होने का चांस बढ़ जाता है. Cas9 introduces which type of DNA damage? Single stranded, double stranded, cross linked, deep urination. So this Cas9 introduces double stranded break. So write it down in your notebook. एक crisp point कि जो Cas9 है, it introduces the double stranded break. ठीक है. Now next question. PAM sequence recognized by this Cas9 is what? कौन सा sequence ये recognize करता है? This is NGG. ठीक है, it recognizes NGG. Now sixth question, CRISPR mediated precise gene correction mainly utilizes what? Non-homologous end joining, base excision repair, HDR or MMR. So it is HDR that is the main thing here. CRISPR mediated में gene correction जो होता है वो HDR से ही होता है. Next one, sequencing technology based on reversible terminator nucleotide is what? Nanopore, PacBio, Illumina, Sanger. So sequencing technology जो है which is based on the reversible terminator nucleotide, that is only Illumina, ठीक है, जो latest है, highly specific है, highly sensitive है. So Illumina पे भी आपको question देखने को मिल सकता है. Now next thing is nanopore sequencing. Nanopore sequencing detect DNA by measuring what? Fluorescence, radioactivity, electrical current changes, absorbance or what?
इट इज इलेक्ट्रिकल करंट चेंजेस. नैनोपोर किस पे काम करता है? सो द मेजर प्रिंसिपल ऑफ नैनोपोर इज टू डिटेक्ट द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल करंट. ठीक है. नेक्स्ट वन, विच NGS प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स लॉन्गेस्ट रीड. लॉन्गेस्ट रीड की यहाँ पे बात हो जा रही है. सो इट इज प्रोवाइडेड बाई पैकबाई, राइट. ना फ्लो साइटोमेट्री एंड फैक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. फॉरवर्ड स्कैटर दैट इज FSC मेनली इंडिकेट्स व्हाट? सेल ग्रैन्युलैरिटी, सेल साइज, DNA कंटेंट, वाइबिलिटी. सो फॉरवर्ड स्कैटर जो रहता है वो क्या बताता है? सेल का साइज बताता है, सेल साइज. नाउ साइड स्कैटर टेल्स अस व्हाट? साइड स्कैटर क्या बताता है? सी, फ्लो साइटोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड जो ये आपका DBT का एग्ज़ाम है, यू ऑलरेडी नो कि DBT हमेशा पूछता है टेक्निक्स के बारे में. ठीक है, जो लेटेस्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है वो हमेशा पूछा जाता है. सो अगर हम बात करें फ्लो साइटोमेट्री में, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री में आपको FSC याद रखना है, दैट इज फॉरवर्ड स्कैटर, एंड साइड स्कैटर भी याद रखना है. ठीक है. सो फॉरवर्ड स्कैटर जो होता है व्हाट इट मेजर्स, सो बेसिकली जो लाइट स्कैटर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है फॉरवर्ड स्कैटर. ठीक है. अब इसका बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है? इट रिलेट्स और इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल साइज और वॉल्यूम. ठीक है. सेल का साइज या वॉल्यूम बताता है. लार्जर सेल होगा तो वो डिफ्रैक्ट करेगा ज़्यादा लाइट एंड विल हैव अ हायर FSC इंटेंसिटी. ठीक है. नाउ साइड स्कैटर जो है वो बेसिकली क्या करता है? लाइट स्कैटर्ड एट अ 90 डिग्री एंगल. साइड स्कैटरिंग में 90 डिग्री का एंगल बनता है एंड ये बायोलॉजिकली क्या मीनिंग है इसका, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? इट कोरिलेट्स विद इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी या फिर आप बोल सकते हैं ग्रेन्युलैरिटी. ठीक है. तो ये बताता है, यानी कि सारी साइड स्कैटर होगा तो वो ग्रेन्युलैरिटी बताएगा सेल का, और अगर फॉरवर्ड स्कैटर है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हिट हो रहा है, देन इट विल टेल अस अबाउट द सेल साइज एंड द वॉल्यूम. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया. एक और क्वेश्चन है, फैक्स डिफर फ्रॉम फ्लो साइटोमेट्री बिकॉज इट कैन सीक्वेंस सेल, सॉर्ट सेल, एम्पलीफाई. इट कैन सॉर्ट सेल. फैक्स का काम होता है दैट इट इज अ सेल सॉर्टर. तो ये क्वेश्चन आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ एलाइजा के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सो एलाइजा जो है वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पार्ट है. ठीक है. सो सैंडविच एलाइजा इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग व्हाट? एंटीजेंस, DNA, RNA, लिपिड. इट इज़ एंटीजन. तो अगर सैंडविच एलाइजा पूछा है तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एलाइजा भी पूछ सकता है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक. ठीक है, टू क्वांटिफाई द टारगेट एंटीजेंस. अब एंटीजेंस कैन बी प्रोटीन, हॉर्मोन्स, वायरल मार्कर्स. ठीक है. इसका नाम सैंडविच क्यों पड़ा है? सैंडविच में क्या होता है? 2 लेयर्स होते हैं, बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं, वेजीज रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं. तो लाइकवाइज सैंडविच का मतलब है कि 2 प्राइमरी एंटीबॉडीज के बीच में, ठीक है, 2 प्राइमरी एंटीबॉडीज के बीच में इंट्रैक्ट होता है, दैट इज व्हाई इट इज सैंडविच एलाइजा. एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन एलाइजा इज HRP. ठीक है. नाउ cyclic AMP is generated by phospholipase C adenyl cyclase PKA PKC. So it is generated by adenylate cyclase. ठीक है. Ras protein function as a kinase, phosphatase, GTPase, ligase. Basically it function as a GTPases. तो जितने भी सेल साइकिल के पार्ट हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं. सेल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and signaling part. JAK-STAT pathway is primarily activated by steroid hormone, cytokines, neurotransmitter, lipid. So it is activated primarily by the cytokines. JAK-STAT cytokine से activate होता है. Restriction point occurs during G1S, G2M. So it is during the G1. Now cyclin B associates with, so let me just tell you कि CDK plus cyclin आपको याद रखना ही होगा. ठीक है. साइक्लिन B इज एसोसिएटेड विद CDK1. DNA replication occurs in, of course, S phase, synthesis phase. Now question, CRISPR knockout efficiency is highest when repairs occur through HTR. and देखो जो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के थ्रू होता है तो वो रिपेयर जो होता है वो काफ़ी अच्छा रिपेयर होता है. ठीक है, परमानेंट रिपेयर होता है. सो NHEJ इज दी answer. Which cytokine is known as the major antiviral cytokine? Interferon
अल्फा, ठीक है, IFN अल्फा इज द मेजर एंटीवायरल साइटोकाइन। सो दिस इज ऑल। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपने नोट से पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। जो टॉपिक्स मैं बताना चाहती हूँ वो है एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब एंजाइम काइनेटिक्स में एक टॉपिक आता है एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन में Vmax और Km पे क्या होता है, किसमें Vmax सेम रहता है, किसमें Vmax डिक्रीज या इंक्रीज होता है, Km इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंजाइम इनहिबिशन में एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, एक होता है अनकॉम्पिटिटिव, राइट। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मीन्स इनहिबिटर रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट एंड हेंस डायरेक्टली बाइंड टू द एंजाइम। यानी जो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर हम लोग बात करें, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर हम बात करें, सो इनहिबिटर विल रिजेंबल द सबस्ट्रेट, तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को खसका के एंजाइम से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सक्सिनेट इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय, सक्सिनेट कौन इनहिबिट कर देता है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मुझे बनाना चाहिए, सक्सिनेट को कौन इनहिबिट कर देता है, मैलोनेट, ठीक है। क्योंकि दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, COO CH2 और ये COO। अब ये है सक्सिनेट, मैलोनेट कैसा दिखता है, COO माइनस CH2 COO, एक ही CH2 ग्रुप कम है, तो इसीलिए मैलोनेट जो है वो इनहिबिट करता है, ठीक है, किसको, सक्सिनेट को। सो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में Km जो है वो इंक्रीज होगा, Vmax जो है वो अनएफेक्टेड रहेगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कंसेप्ट समझा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा। Km बढ़ेगा, Vmax अनएफेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स डायरेक्टली टू द एंजाइम, जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, इनहिबिटर बाइंड्स डायरेक्टली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हमें पता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है E+S, फिर ये क्या बनता है, EP बनता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इससे इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, Km और Vmax ये दोनों ही कम हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही कम हो जाएंगे, तो ये याद रख लेना है। उसके अलावा जो आता है वो आता है हमारा ये नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या है कॉम्पिटिटिव, क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव, एक कंसेप्ट तो ये हो गया। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है DNA रिपेयर पाथवे, DNA रिपेयर पाथवे, ठीक है। BER क्या है, बेस एक्सिजन रिपेयर, ठीक है। इसके अलावा मिसमैच रिपेयर, इकोलाई के जो प्रोटीन्स हैं MUT-S, MUT-HEL, UVRD, ये सारे क्या है, इनका फंक्शन क्या है, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, one question will be definitely from the topic of secondary metabolites, secondary metabolites, ठीक है। secondary metabolites से क्वेश्चन होगा बिकॉज in this syllabus it is clearly mentioned the agriculture biotech plant biotech, तो आपका आप इस बार नहीं बोल सकते हैं कि अरे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया, लाइक यू आर टेलिंग इन ICMR साइंटिस्ट बी एग्जामिनेशन। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में टर्पीन्स क्या है, फिनोलिक कंपाउंड्स क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या है, यानी अल्किलॉइड के एग्जाम्पल, साइटोजेनिक ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ दियर रोल, क्यों होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सिंथेसिस और उनका क्या रोल है, राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो मेन है फाइटो हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
कौन सेनेसेंस करवाता है, कौन सेनेसेंस को डिले करता है, कौन प्लांट के ड्वार्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, कौन राइपनिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। नाउ इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्टर्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्टर्स, SGLT ट्रांसपोर्टर्स, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एंड आप बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हैं अल्फ़ा, हेलिक्स और बीटा शीट, यानी कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन आप नहीं मिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, सिंड्रोम्स इम्पॉर्टेंट है, मेरे ही चैनल पे वीडियोस है, आप देख सकते हैं कि वॉन गिरके सिंड्रोम क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन से क्या होता है, यानी डिफेक्टिव कोलेजन है बॉडी में तो कौन सा सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द इनहिबिटर्स ऑफ द ETC, inhibitors of the ETC is very very important, you cannot miss it। एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट मिस इट, कि क्या रोल है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड का, प्रोटीन का, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन नॉट मिस इट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप you liked it. Don't forget to subscribe the channel and do your best and revise as much as possible.